یہ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے ہمراہ سرگودا میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ سرگودا میں 62 کروڑ 30 لاکھ کے 6 منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ 351 ملین لاگت سے ڈپٹی کمشنر آفس کمپلیکس سرگودا کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ نے سرگودا میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ 140 ملین سے امبالہ مسلم کالج سرگودا میں بی ایس بلاک کا افتتاح کیا۔ 623 ملین سے رورل ایکسیسیبلٹی پروگرام فیز 1 کا افتتاح۔ 650 ملین لاگت سے رورل ایکسیسیبلٹی پروگرام فیز 2 کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ سرگودا بوٹنیکل گارڈن اینڈ میاواں کے جنگل کا بھی افتتاح۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ریلوے کالونی سیکنڈ شفٹ میں مزدور بچوں کے لیے لرننگ سینٹر کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا دورہ سرگودا میں 62 کروڑ 30 لاکھ کے 6 منصوبوں کا افتتاح کیا گیا۔ 351 ملین لاگت سے ڈپٹی کمشنر آفس کمپلیکس سرگودا کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سرگودا میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ 140 ملین سے امبالہ مسلم کالج سرگودا میں بی ایس بلاک کا بھی افتتاح کیا گیا ہے، جبکہ 623 ملین سے رورل ایکسیسیبلٹی پروگرام فیز 1 کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ 650 ملین لاگت سے رورل ایکسیسیبلٹی پروگرام فیز 2 کا بھی اعلان کیا گیا۔ سرگودا بوٹنیکل گارڈن اینڈ میاواں کے جنگل کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ریلوے کالونی سیکنڈ شفٹ میں مزدور بچوں کے لیے لرننگ سینٹر کا بھی افتتاح۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ ایک اہم دورہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے سرگودا میں، جہاں پر انہوں نے مختلف اشیاء کا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا دورہ سرگودا میں 62 کروڑ 30 لاکھ کے 6 منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ہے۔ 351 ملین لاگت سے ڈپٹی کمشنر آفس کمپلیکس سرگودا کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے سرگودا میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ 140 ملین سے امبالہ مسلم کالج سرگودا میں بی ایس بلاک کا افتتاح کیا گیا ہے، جبکہ 623 ملین سے رورل ایکسیسیبلٹی پروگرام کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سرگودا میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی سرکٹ ہاؤس میں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں، عوامی مسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ عوامی نمائندوں نے ترقیاتی منصوبوں بارے تجاویز اور سفارشات بھی پیش کی۔ سرگودا کی ترقی کا سفر تیز سے تیز تر کیا جائے گا، یہ کہنا تھا عثمان بزدار کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کو اگلے 2.5 سال میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پنجاب کے ہر شہر اور علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے ثمرات نظر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملاقات میں ایم این اے عامر سلطان چیمہ، صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیاسی موجود تھے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، سیکٹری گڈ گورننس اعجاز منہاس بھی موجود تھے۔ کمشنر، آر پی او، ڈپٹی کمشنر اور دیگر حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، سرگودا میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سرکٹ ہاؤس میں اراکین اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ترقیاتی منصوبوں، عوامی مسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ملتان کی متعدد مارکیٹس میں چینی کی قلت کی شکایات سامنے آ گئی ہیں۔ دستی قوت خرید سے باہر ہے۔ چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ مہنگی چینی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ الشبہ آصف بھی موجود ہیں، شہریوں کے ساتھ ان سے بھی مزید اپڈیٹ لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان کی متعدد مارکیٹس میں چینی کی قلت کی شکایات سامنے آ گئی ہیں۔ دستیاب چینی بھی شہریوں کی قوت سے باہر ہونے لگی ہے۔ چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الشبہ آصف۔ الشبہ بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، رمضان کی آمد ہے اور مارکیٹ میں اگر چینی کی قیمت کی بات کی جائے تو 110 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ رمضان میں جو ہے شربت جو ہے بنایا جاتا ہے، لازمی ہے وہ۔ شہری جو ہے چینی کے مہنگے ہونے سے پریشان ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے جو ہے رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر لی جاتی ہے، تقریباً لوگ جو ہے لے لیتے ہیں، مگر اب ایسے کوئی حالات نہیں ہے۔ مگر اگر ایسے ہی چینی کے ریٹس بڑھتے رہے تو رمضان میں شربت بنانا بھی مشکل ہو جائے گا، چینی لینا ابھی بھی مشکل ہے۔ 110 روپے کلو چینی کی قیمت ہے۔ اس وقت میں گردیزی مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پر چینی کی قیمت دکانوں پہ تو چینی مل رہی ہے 110 روپے کلو مل رہی ہے۔ شہری میرے ساتھ کچھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، انہیں کیا پریشانیاں جی بتائیے۔ جی پریشانی یہی ہے جی، افورڈ نہیں کر پا رہے ہم تو۔ ہماری تو پوزیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم اتنے پریشان ہیں کہ سیلری پرسن بندہ
15 तारीख को 14 तारीख को अपनी तनख्वाह मुकाए बैठा होता है और आगे से वो जो चीज़ें लेने जाते हैं वो इतनी इंतहाई मतलब आसमान को छू रही हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। मैं तो इतना हैरान हूँ कि चीनी के हवाले से कि गन्ना हमारा अपनी फसल है, वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर कि चीनी सस्ती होनी चाहिए। एक्शन आ जाता है जी, एक्शन ले लिया वज़ीर आज़म ने, एक्शन ले लिया जी, एक्शन ले लिया, पता नहीं कहाँ एक्शन, हमें तो नहीं नज़र आ रहा कोई भी एक्शन। खुदारा मेहरबानी करें हमारे ऊपर और चीनी पे कंट्रोल करवाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी हैं चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। उनका यही कहना है कि गन्ना जो है हालांकि अपनी फसल है फिर भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा इसकी कीमत पे। आगे रमज़ान है, रमज़ान के लिए जो है ले जा नहीं सकते अभी से जो चीज़ें हैं महीने की जो लेके रखते थे, क्योंकि महंगाई इतनी है और चीनी चीनी की कीमत में कमी लाई जाए। लिशबाग सिर्फ शुक्रिया। मुल्तान मार्केट में चीनी की कमी की शिकायत सामने आ रही हैं। बचत न होने पर दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी है। इसी पर मजीद बात करते हैं इब्राहिम खान। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो गल्ला मंडी में जो है 100 किलोग्राम की बोरी चीनी की उसकी कीमत जो है 500 रुपये का जो है वो इजाफा सामने आया है। कीमत 94 से बढ़कर जो है 9,900 रुपये जो है वो हो गई है। जबकि मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट में भी जो है वो चीनी में 5 से 10 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत भी 100 से 110 रुपये पर जो आ गई है। और दूसरी जानिब जो है चीनी की जो है शॉर्टेज भी चल रही है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। मजीद हम जानने की कोशिश करते हैं दुकानदारों से, क्या कहना चाहेंगे? चीनी सर 5,000 रुपये की बोरी है मंडी में, वो इसी वजह से लेकर रहे गाहक हमसे आके बहस कर रहे हैं। और ना ही हमारे पास इतनी कुव्वत है खरीद हम चीनी ये की बोरी 5,000 रुपये इकट्ठा हो जाके लेकर आए बोरी। तो गाहक है नहीं, 20 रुपये 30 रुपये किलो वाला गाहक जा रहा है बड़े बड़े शॉप पे। वहाँ से तो चलो वो उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम होता है, वो उनसे हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं कि हम 5,000 इकट्ठा हो चीनी की बोरी लेकर आए भाई। इसलिए चीनी रखनी हमने खत्म कर दी अभी तो। भाईजान आप क्या कहेंगे? रमज़ान आ रहा है, चीनी कीमतों में इजाफा हो गया है, शॉर्टेज भी हो गई है। जो वहाँ डॉलर सस्ता हो गया, यहाँ चीज़ें महंगी हो गई हैं। बेसिकली पहले कहते हैं जी डॉलर महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। 10-11 रुपये डॉलर नीचे गिरा पर चीनी वहीं खड़ी है, पेट्रोल वहीं का वहीं खड़ा है। अच्छा बिल्कुल यही कहना है कि चीनी जो है इसकी कीमतों में जो है वह इजाफा हो रहा सामना है। और है इब्राहिम खान, शुक्रिया। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की किल्लत है, जिस पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमें माजिद कलासरा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई में यूटिलिटी स्टोर पर जो वो शहरियों को रिलीफ मिलना था। अगर यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो शहरियों की जानिब से ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर हमें चीनी जो है वो यहाँ पर मैसर नहीं आती, और यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मैसर ना होने से मार्केट्स में जो है वो उसकी चीनी की जो कीमत है वो 110 रुपये तक जो है वो पहुँच जाती है। और जो दुकानदार हैं अपनी मनमर्जी से जो है वो रेट फरोख्त करते हैं। इस टाइम अगर यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यहाँ पर भी अभी चीनी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरी यहाँ पर चीनी की जो पूछ के जो है वो वापसी जा रहे हैं। दुकानदार हजरात की जानिब से ये कहा जाता है कि हमें चीनी जो है वो कुछ देर तक जो है वो मैसर आ सके। हमारे साथ सेल्स मैनेजर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा क्या कहेंगे, चीनी की कितनी क्वांटिटी आप लेके आते हैं और इस हवाले से कब तक जो है वो चीनी खत्म हो जाती है? डेली हमारे पास 300 पैकेट चीनी का आता है 2 kg का, ठीक है। ये उसकी डिटेल लिस्ट है और ये उसकी डेट वाइज लिखा हुआ है। 600 kg चीनी आती है, डेली आते हैं तकरीबन 2 से 3 के दरमियान, 2 से 4 के दरमियान, मतलब जैसे स्टोर वाइज शेड्यूल होता है ना अनलोडिंग का, वैसे तकरीबन डेली आता है। और एक कस्टमर को 1 पैकेट देते हैं हम, ठीक है। और सेकेंड टाइम टोटल चीनी ही होती है हमारे पास और डेली का कोटा होता है। तो क्या कितने रेट्स में कितने किलो का? 68 रुपये पर kg है, 136 रुपये का पैकेट है 2 किलो का जी। तो शहरों की जानिब से शिकायत की जाती है जब भी चीनी आती है। चीनी मुयसर नहीं है। माजिद कलासरा, शुक्रिया। और अभी आपको बताएं मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी मुदर सेहत पापड़ तैयार करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। मुल्तान और मुज़ाफाती इलाकों में मुतादिद फूड पॉइंट्स की चेकिंग। पापड़ फैक्ट्री सील कर दी गई है। गैर मयारी और ममनुआ अज्जा के इस्तेमाल पर मूसा पाक में आमिर फूड सील। पापड़ की तैयारी में मसनूई मिठास और अशिया ऐसी इस्तेमाल की जा रही थी जो मुदर सेहत थी। साफ पानी की अदम फ्राहमी और सफाई के नाकिस इंतजामात भी पाए गए। जलालपुर पीरबाला में अलखैर स्वीट्स एंड बेकर्स को 30,000 जुर्माना। एक्साइज कलर के इस्तेमाल और आलूदा मशीनरी के इस्तेमाल पर जुर्माना भी किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी मुदर सेहत पापड़ तैयार करने वालों के खिलाफ इन एक्शन है। मुल्तान में निश्तर अस्पताल में कोरोना आईसीयू वार्ड में गंदगी के ढेर लग गए। शहरी की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आईसीयू वार्ड 8C में सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल है। वार्ड में गलाजत, छिपकलियां और सिगरेट के खाली डिब्बे भी देखे जा सकते हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना आईसीयू वार्ड में गंदगी ही गंदगी। शहरी की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आईसीयू वार्ड 8C में सफाई के इंतहाई नाकिस सूरत हाल है।
वार्ड में गलाजत के ढेर लग चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा बिलाल नियासी। बिलाल, बताएगा ये सारा क्या मामला है और कब से इस जगह की सफाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, कोरोना की एक जानिब लहर जारी है। दावे किए जा रहे हैं कि मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड के हैं, AHC के, और इसके अलावा जो दीगर वार्ड है उनकी सूरत हाल भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है। यहाँ पर सफाई ना होने के बराबर है, जिसके बायस शहरी वहाँ पे जो इलाज था उसका पेशेंट था, उसने वीडियो बनाई, वो वायरल हुई और इस सवाल से पहले भी कई बार शिकायत सामने आती रही है, लेकिन इस सवाल से किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। अगर हम बात करें तो जो कोरोना वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड का बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ पर मरीजों को उनके कैंटीना में रखा जाए, लेकिन निश्तर हॉस्पिटल की एक अजब सी कहानी है कि वहाँ पर मरीज के साथ उसके लवाहिकीन को भी रहने की इजाजत दी जाती है। इस सवाल से हमने निश्तर हुकाम से बात की, तो निश्तर हुकाम का ये कहना था कि लवाहिकीन अपना मरीज अकेला नहीं छोड़ते, जिस सूरत में इजाजत दी गई। जबकि जब हमने सफाई के हवाले से सवाल किया तो उनका ये कहना है कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उनसे बात की जाएगी और जो इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बात के लिए जो वीडियो सामने इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्तर हॉस्पिटल के जो इंतजामी अफसरान है वो निश्तर कोरोना वार्ड का कोई चक्कर नहीं लगाते, वहाँ पर किसी किस्म की सफाई इक़दामात नहीं किया। अगर वहाँ पे कोई विजिट किए जाते तो यकीनन इस सूरत हाल में बेहतरी आ सकती थी, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म के विजिट नहीं होते, जिसके बाद वहाँ पर जो कचरे के ढेर सफाई के इंतजामात नहीं है। बिलाल नियासी, आप हमारे साथ ही रहे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तर्जुमान निश्तर अस्पताल डॉक्टर सज्जाद। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे सर कि ये कोरोना ICU वार्ड है और इन लोगों का तो इम्यून सिस्टम ज्यादा वीक होता है, तो इस वार्ड में इतनी ज्यादा गंदगी कैसे जमा हो गई? नहीं, ये ऐसे नहीं है। एक्चुअली ये स्टोर की पिक्चर दिखाई गई है इस वीडियो में, ठीक है, जिसमें किसी अटेंडेंट ने जानबूझ के कोई चीज फेंक दी है और उसके बाद उसको इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। एक्चुअली ये स्टोर है, आपने देखा कि सारा सामान ऊपर नीचे स्टेज पड़ी हुई है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई चीज फेंके उसके बाद उसकी वीडियो बना ले तो इसका क्या हल हो सकता है? अगर ये स्टोर की भी वीडियो है सर, तो स्टोर में भी तो इतना ज्यादा गंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल जो एक ऐसा इदारा ही ऐसी जगह है जहां पर सफाई का खास इंतजाम होना चाहिए। और ये तो बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि वार्ड 8C की वीडियो है। जी, ये देखिए उसके साथ जो स्टोर है जहाँ पे यूरोलॉजी वो वार्ड का ये सारा जो है ना लेफ्ट ओवर है, उधर सामान पड़ा हुआ है। तो इसको देखें, जब भी सफाई भी करनी होती है ना, पहले एक जगह सामान को सारा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसको कहीं शिफ्ट किया जाता है ना। डॉक्टर साहब, अगर आप ये अभी फुटेज देख रहे हैं जो रोही की फुटेज पर आपको नजर आ रही होगी, स्क्रीन पर चल रही है फुटेज, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इसमें लवाहिकीन भी मौजूद हैं, पेशेंट्स भी मौजूद हैं और इसी तरह एतराफ में गंद भी दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टोर की वीडियो तो नहीं कहा जा सकता इसको, इसमें साफ साफ वार्ड दिखाई दे रहा है। स्टोर की लहदा दिखा रहे हैं, उसके बाद जाकर उसको वार्ड की दिखाई जा रही है। यानी आपका कहना है कि ये वीडियो जो है वो है ही नहीं, जबकि मरीज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये जो स्टोर की लहदा दिखाई जा रही है उसके साथ वार्ड की लहदा दिखाई जा रही है। बिलाल, आप इस हवाले से जरा हमें बताइएगा कि आप क्या कहते हैं इस पर, पेशेंट्स उनके लवाहिकीन का क्या कहना है? और यहाँ पर किचन के भी दिखाई दे रहे हैं मनासर साफ साफ फुटेज में, किचन में भी इंतहाई गंदगी जो है वो दिखाई दे रही है, जहां पर लवाहिकीन ने ऑब्वियसली अपने पेशेंट्स के लिए खाना भी बनाना होगा। तो पेशेंट्स का और लवाहिकीन का क्या कहना है? बिल्कुल, इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो लवाहिकीन है वो इस हवाले से शिकायत करते हुए वीडियो में भी नजर आया। इसके अलावा जब हम भी उनसे बात करते हैं तो वो ये गिला करते नजर आते हैं कि जो सहूलियात होनी चाहिए थी, जो कि कोरोना के मरीजों को मिलनी चाहिए थी, वो फराहम नहीं की जाती। तो जहाँ तक कहना है कि स्टोर की वीडियो ज्यादा दिखाई जा रही है जबकि वार्ड की वीडियो कम दिखाई जा रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया इस बात पर किस तरह से इसको सीरियस ले रही है, क्योंकि वार्ड के अंदर भी इस हवाले से जो वार्ड के साथ ही बिल्कुल अगर स्टोर मौजूद है, वहाँ पर इस तरह का सामान मौजूद है और वहाँ से अगर मरीजों को लवाहिकीन को मरीजों को बदबू आ रही है, तो यकीनन इस पर ये कहा जा सकता है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर सफाई लवाहिकीन को बदबू आ रही है, इस पर एक्शन होना चाहिए। बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स के साथ लवाहिकीन भी दिखाई दे रहे हैं, तो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो तो काफी हद तक शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो लवाहिकीन को पेशेंट्स के साथ कैसे अलाउ किया गया है हॉस्पिटल की जानिब से रहना?
डॉक्टर साहब के साथ गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आप ये मनासिर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ये मनासिर जो हैं निश्तर अस्पताल के हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बदबू और ताफुन फैला हुआ है। ये मनासिर है वार्ड 8C के मनासिर आपने मुलाहिजा किए हैं। इस पर जो निश्तर अस्पताल के डॉक्टर सज्जाद हैं, उनका ये कहना था कि ये मनासिर जो हैं वो आईसीयू वार्ड के नहीं है, बल्कि ये तो हॉस्पिटल का एक स्टोर रूम है जिसके मनासिर टेलीविजन में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है बिलाल नियाजी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नासरीन, मुल्तान में जिला कचहरी में एक हफ्ते के दौरान लड़ाई का ये दूसरा वाकया सामने आ गया है, जिसमें साबिका शोहर पसंद की शादी करने वाली लड़की को कचहरी में घसीटा रहा है। लड़की पहले शोहर से खुला लेकर दूसरे शोहर के हक में बयान देने आई थी। लड़की को साबिका ससुरालियों ने दबोच कर दुर्गत बना डाली। लड़ाई का वाकया डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के ऐन सामने पेश आया है। पुलिस पहुंचने से कबल मुल्जिमान मौके से फरार हो गए थे। आप ये फुटेज भी देख रहे हैं जिसमें किस तरह से साबिका शोहर की जानिब से अपनी साबिका बीवी को घसीटा जा रहा है। साबिका शोहर पसंद की शादी करने वाली लड़की को कचहरी में घसीटता रहा है। लड़की पहले शोहर से खुला लेकर दूसरे शोहर के हक में बयान देने आई थी। लड़की को साबिका ससुरालियों ने दबोच कर दुर्गत बना डाली। लड़ाई का वाकया डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के ऐन सामने पेश आया है। पुलिस पहुंचने से कबल ही मुल्जिमान मौके से फरार हो गए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मुल्तान में वासा के सेवरमैन की मौतरी के खिलाफ सेवरमैनों ने हड़ताल दे दी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, वासा में सीवरमैनों की जानिब से मुकम्मल तौर पर हड़ताल एहतजाज का सिलसिला जारी है। हड़ताल का जो सिलसिला शुरू हुआ उसकी जो वजह बताई जा रही है वो सीवरमैन की मुअत्तली है। हमारे साथ वो मुतलका सीवरमैन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला पेश आया था, उनको क्या किस वजह से मुअत्तल किया गया है और क्या वजह बताई गई है। अच्छा बताइएगा, कहा जा रहा है कि आपको मिसकंडक्ट की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया, क्या वजह थी? मैं सीवरमैन हूँ, रोहतक हाउस में काम करने गया हूँ। 8 9 मैनुअल साफ किया, मैं जिथे कोई बंदा नजर नहीं आया धावन के लिए। मैं पानी बुआ खड़का कोई नहीं देता। मैं सीधा दफ्तर अपने इंतजामी को आखे तुसा काम वास्ते गलेंदे सा कोई दवा के राजी करनी सा को चूड़ा मसली समझ गिने उथू लिया उत्थे गाली कटे लगा। मैं इतने अपने दफ्तर आके मैं आके साकू ना दवाए हथ गाली नाल कटी। मैं अपने सुपरवाइजर को आखे सुपरवाइजर उनके नाल हथ सुपरवाइजर को बंदे कढ़न पा गए। हथ सुपरवाइजर सस्पेंड करवा दी थी। हथ काम करूं हथ गाली खाऊं साग उथे कोई पानी ते पानी धावन वास्ते कोई नहीं देता। असा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दफ्तर आ जाऊं। बिल्कुल सवाल इनका ये कहना है सही बिलाल नियाजी, शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान के शहर और देहातों में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए स्कीम्स तैयार कर ली गई हैं। स्कीम्स के मुतालिक मजीद बता रहे हैं अमजद मलिक। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में तरक्याती कामों के हवाले से बाकायदा तौर पर जो स्कीमें हैं वो तैयार की गई हैं। अगर बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की, तो इसमें भी जो कि 7 से 8 नई स्कीमें हैं वो शामिल की गई हैं। और मुल्तान जिला कौंसिल के अंदर जो देही इलाके हैं वहां पे भी 9 स्कीमें जो हैं उनका इजरा किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्सियन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एंड जिला कौंसिल अब्बास नकवी साहब। बताइएगा कौन कौन सी स्कीमें हैं जो कि मंजूरी ली जा रही है और ये कब तक काम शुरू होगा, इससे शहरियों को कौन कौन से फवायद हैं वो हासिल होंगे? ये तहसील कौंसिल की 9 स्कीम्स आज आप डिस्कस कर रहे हैं, जो आज हमारी मीटिंग है, और कॉरपोरेशन की 7 स्कीम्स हैं। इसके अंदर मेन स्कीम है हमारी दौलत गेट से हुसैन गाई वाली रोड, घंटा घर से दौलत गेट वाली, ये कोई 5.5 करोड़ की स्कीम है। और बाकी जो स्कीम्स हैं उसके अंदर मेटल रोड वगैरह हैं, सारी इसी तरह की स्कीम्स हैं। ठीक है, ये कब तक काम शुरू हो जाएगा, टोटल कितनी लागत आएगी और ये कहाँ कहाँ पे, देहातों की अगर बात करते हैं देहातों में कहाँ कहाँ पे काम होंगे? कुछ शहर के अंदर तो कोई 2.5 करोड़ की स्कीम्स हैं और इसके अलावा इन 2 रोड्स के अलावा उनकी तो 6 करोड़ की एस्टिमेशन है और देहात के अंदर कोई 2.5 करोड़ की स्कीम्स हैं। और ये स्कीम जो ही इधर से पास होती हैं लोकल प्लानिंग बोर्ड से, तो उसके बाद हम टेंडर करके इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सर, देहातों में कौन कौन सी स्कीमें जो सही अमजद मलिक, शुक्रिया। और डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बनाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आशिर इशफाक।
ڈیرہ غازی خان میں باقاعدہ طور کے اوپر ڈسٹرکٹ کورٹ میں فلٹریشن پلانٹ کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہزاد سعید نے یہاں پر افتتاح کیا ہے اور یہاں پر دیگر وکلاء صاحبان، ڈسٹرکٹ بار کے ممبر، پریزیڈنٹ، جنرل سیکریٹری اور دیگر تمام لوگ موجود ہیں. لطیف پتافی صاحب بھی موجود ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شہزاد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر، فلٹریشن پلانٹ کا آج آغاز ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے یہاں پر پہلا فلٹریشن پلانٹ ہے، لوگوں کو کس طرح کی سہولیات میسر ہوں گی؟ سب سے پہلے تو میں ڈی جی خان میں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اور جو لٹیگنٹس ہیں یہاں کے جو وکلاء صاحبان ہیں، یہاں کی بار ہے، سب کو میں مبارکباد دوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہمارے لیے، جو ہم نے اپنے وکلاء بھائیوں کے لیے، اپنے لٹیگنٹس کے لیے، اپنے جج صاحبان کے لیے، اپنے سٹاف کے لیے یہاں پہ ٹھنڈا صاف پینے کا پانی فلٹر پلانٹ یہاں پہ لگایا. اور اس کے لیے موسیٰ خان فاؤنڈیشن جو بلال پتافی صاحب ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو انہوں نے لطیف پتافی صاحب انہوں نے اس پلانٹ کے لگانے میں ان کا اپنے پورا ایک اپنا ان کا کردار ہے اور یہ ان کا صدقہ جاری ہے جو لوگوں ان کو دعا دیں گے. اور یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور تمام ایڈوکیٹس اور تمام جو لٹیگنٹس ہیں ان کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ اس سلسلے میں بار کا تعاون میرے ساتھ بہت رہا ہے. پریزیڈنٹ بار ثاقب صاحب ہیں اور جو آئیڈیا تھا وہ سردار صاحب کا تھا. سردار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں، سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کھوسا صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا اور اس کو یہ ایکسیکیوٹ میں نے پھر کر دیا. اور یہ اس سب کام میں ہم سب کا ایک کنٹریبیوشن ہے اور سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پتافی صاحب کا ہے. بہت شکریہ. جی بالکل، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں آج باقاعدہ طور کے اوپر فلٹریشن پلانٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے آصر، شکریہ. میئر ملتان کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کے دفتر کا چارج سنبھالنے کا معاملہ، چیئرمین اوورسیز کمیشن ملتان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء کی تصویریں اتارنے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید انور سے. جی بالکل، بلدیاتی ادارے بحال ہونے کے بعد میئر ملتان کی جانب سے جو بلدیاتی دفتر ہے میونسپل کارپوریشن کا، وہاں کا چارج لیا گیا، جہاں پر کچھ لیگی کارکنان کی جانب سے اوورسیز کمیشن کے دفتر کا جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہلڑ بازی مچائی گئی، جہاں پر تحریک انصاف کے قائدین بشمول وزیر اعظم عمران خان کی تصویروں کو بھی اتارا گیا، جس پر تحریک انصاف کے کارکنان بھی جو ہے وہ شدید جو ہے غم و غصے کی کیفیت میں ہے. اس پر جو چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب جو ہے شعیب اکمل ہاشمی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. ہاشمی صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایک بڑا تحمل والا ایک رویہ اختیار کیا گیا ہے، وزیر اعظم کی تصویر اتاری گئی ہے، لیگی کارکنان کی جانب سے، کچھ جذباتی کارکنان کی جانب سے یہ عمل سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل میونسپل کارپوریشن کے اندر جو دفتر ہے جو او پی سی کا ہے، اس کا میئر آفس سے میرے خیال کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں اس ایکٹ کے اس لیے خلاف تھا کہ ایک پراپر ہمیں ڈائریکشن آتی، ہم ویسے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے. ہمارا مقصد جو ہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو ہینڈل کیا، اور میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ جی آپ نے رجسٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ اس قسم کی جو چیز ہے وہ ہونے والی ہے. باقی جو آ کے کیا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں تھا، اور جس طرح قائدین کی تصاویر کو انہوں نے آ کے جو ہے وہ پچھاڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو ہم واقعہ کی مذمت کرتے ہیں. جنید انور، شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.